a brief stint in technical sales market. So Chandrakant has been largely associated with software and IT industry in India, USA and Japan for the last 15 plus years and has worked with various Indian and foreign companies, including Wipro Technology, Johnson Control, Toshiba, etc. So Chandrakant has been associated with and voluntarily conducting the Sahaja Yoga meditation programs and classes free of cost with various government organizations, colleges, schools, and private sector companies. So once again, I am welcoming Professor Ashok Kumar Mishra sir and Chandrakant sir. So welcome, sir. So please start your session, sir. Thank you. Thank Thank you, you very Chandrakant. much. Yeah. So, thank you, sir, for this warm welcome. With me today, one of my one more colleague is there, Vishal Gupta. He's working in Infosys. So he's also with me. Will be helping in a session. So Vishal, you can help us in question answer, as well as if you find any question, you can please answer on chat. And there will be one of our colleague, Archana. She is IIT pass out and currently a professor in MIT College. She will be also joining soon. So today's session will be a very simple. It will be around 40-45 minute session where we will going to learn about the Sahaj Yoga meditation. What is a Sahaj Yoga meditation and how it will help us to balance our mental being, physical being, and all other day-to-day problem. So let's start with the very simple question. What is a meditation? Can someone please tell me what is a meditation? So we want this session a little interactive. You can post your question on chat, or you can unmute your mic and you can ask the question. Sir, meditation means to train your mind so that the things is go in organized way, or we can do the things in more concentratedly. So, Rajkumar sir, thank you for giving this answer. You are correct little bit, but this is the benefit of meditation. So you are absolutely correct. It gives a benefit. But what will be the simple definition of meditation? If we ask what will be the meditation? सर आई थिंक दिस इज अ मतलब सर मानसिक और शारीरिक शांति मतलब अपने अंदर की चीजों को पहचानना. यस साक्षी मैम, थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत सही आंसर दिया है और दिस इज परफेक्टली राइट. बट अगेन दिस इज अ बेनिफिट. मैं बोलूंगा कि ये उसका फायदा है. इट्स अ बेनिफिट. बट व्हाट विल बी सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन? अगर मुझे एक छोटे बच्चे को समझाना है कि ध्यान क्या होता है, या किसी लेमैन को समझाना है कि ध्यान क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या होता है ध्यान, तो क्या बताएंगे हम? एनीवन वांट टू ट्राई? यू ऑल आर करेक्ट. आप सब सही आंसर दे रहे हो, लेकिन आप बेनिफिट बता रहे हो. तो ये सारे बेनिफिट सही है मेडिटेशन के. लेकिन मेडिटेशन क्या होता है? अगर हम देखेंगे पुराने हमारे किताब देखेंगे या पुराने स्पिरिचुअल लीडर देखेंगे, तो हमें इतना तो पता है कि वो आंखें बंद करके बैठते हैं. राइट? यू ऑल आर एग्री? They are just closing their eyes and sitting. But what exactly they are doing when they close their eyes? Sir, they want to connect with the spiritual God in order to attain peace in their mind, uh, 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 so that they can be in peace for some more time. They can be means so that they can only means attain something means which is not from the other world or the outside world. उद्भव सर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है. बहुत थोड़ा सा आंसर के नजदीक जाने की कोशिश की है. सो अगेन, इफ इट गिव्स अ पीस, दैट इज अगेन इट्स अ बेनिफिट.
it's connected to spiritual God. That is also somehow it's correct. But we want a very simple definition so that everyone can understand what will be the meditation is. In Sanskrit, we call as a turiya state. In scientific language, we call as a fourth dimension. In Hindi, we call as a dhyan. In English, we call as a meditation. But what is exactly that state? So meditation is all about controlling our mind or thinking, focusing on something. Not meditation is closing eyes, senses, and control emotions and other things. Yes, Ravi, sir, you are right. It will basically controlling our senses, kind of improving our concentration and all other things. These all are benefit. So let's do one thing. We all can close our eyes for few seconds and observe ourselves, what is going on inside our brain, inside our heart. Can you please close your eyes for few seconds? Now slowly you can open your eyes. Slowly you can open your eyes. And can you please tell me what is going on when you close your eyes? Actually, sir, actually we are confused basically. When you close my mind, nothing, it means we cannot realize anything. Just something, a peace is coming like that. Okay, that is good. What else? Any other feedback? Sir, a pressure is exerted between the eyes, means in the gap. What else? Yeah. Thank you, sir. What else? सर दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और एक पॉइंट पर फोकस नहीं हो पाता, नहीं हो पा करेक्ट रहा है। मैम, साक्षी मैम आपने बहुत सही आंसर दिया है। अगर जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमको बहुत सारे विचार आते हैं। एक तो भूतकाल के विचार आते हैं या भविष्य काल के विचार आते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम 2 मिनट भी, अगर 2 मिनट क्या, अगर हम 5 सेकंड भी अपनी आंखें बंद करें तो हमको विचार आते हैं, भूतकाल के या भविष्य काल के। मेरे साथ में कुछ तो हो गया, मुझे किसने कुछ बोल दिया, या भविष्य काल के, मेरे साथ में ये हो गया, वो हो गया। तो अगर हम देखें तो हमारे विचारों की जो वेव्स है, जिसे हम साइन वेव बोलते हैं, तो एक विचार आता है वो जाता है, दूसरा विचार आता है वो जाता है। ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। कोई थॉट हमें खुशी देता है, कोई थॉट हमें सैडनेस देता है, क्योंकि कुछ अच्छे एक्सपीरियंस रहते हैं हमारे लाइफ के, कुछ बैड एक्सपीरियंस रहते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली है, लेकिन हमें कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जब हमारे ये विचार पूरी तरह रुक जाए। तो फिर ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है? अगर आप ये मेरा पीपीटी देख पा रहे हो तो इसमें 2 विचारों के अंदर जो गैप रहता है उसे हम थॉटलेस अवेयरनेस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में ध्यान बोलते हैं। और इसी स्थिति को आज हम महसूस करने वाले हैं। इसी को हम ध्यान कहते हैं, इसी को हम तुरिया कहते हैं, मराठी में इसी को निर्विचारिता कहते हैं, हिंदी में इसी को थॉटलेस अवेयरनेस कहते हैं। और ये स्थिति जब आपको प्राप्त होती है कुछ सेकंड के लिए भी, तो आपके सारे प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। कैसे दूर होते हैं? क्यों? क्योंकि थॉटलेस अवेयरनेस ये एक लास्ट और सबसे बेस्ट स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको बेनिफिट मिलते हैं। एक्सरसाइज के बाद में अगर हम योगासन करेंगे तो हमको और भी बेनिफिट मिलेंगे। योगासन के बाद की जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उससे हमको योगासन से भी ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं प्राणायाम में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में। लेकिन प्राणायाम के बाद में क्या? प्राणायाम के बाद में ध्यान, जो सबसे आखिरी स्टेज है ह्यूमन इवोल्यूशन में। जब हम ध्यान करते हैं तो हमको प्राणायाम के तो बेनिफिट मिलते ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारा कंसंट्रेशन पावर अच्छा होता है, हमारा एंगर दूर होता है, हमको अंदर से पीस मिलता है, ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे अभी के सिचुएशन में हमारी रोग प्रतिकार शक्ति, जिसको हम इम्यून पावर बोलते हैं, वो इंक्रीज होती है। वो इंक्रीज हुई तो हम सारे जितने भी साइकोसोमेटिक डिसीज है उससे बहुत अच्छी तरह हम फाइट कर पाते हैं, लड़ पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे उसके बेनिफिट है।
तो अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि ये सहज योगा बेसिकली क्या है, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा सा और पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि अगर लेट्स से सपोज आई से पे अटेंशन टू योरसेल्फ, or let's take an example, a teacher will say pay attention, so all the student will start looking at him, looking at the backboard. But if I say pay attention to yourself, then you will say, sir, how do we do it? It is impossible thing. How do we take our attention inside? It's all the time outside, and how we can take inside? So that's why we have to get your realization. You have to become a spirit by which you can take your attention inside your roots. That's why the first condition in the Sahaja Yoga system is that we have to become a spirit. So आज हम कुछ प्रेयर करेंगे जिसमें हम एक कुछ प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे जिसमें हम स्पिरिट वर्ड यूज करेंगे, जिससे हम महसूस करेंगे कि हम खुद एक आत्मा है क्या, तो जिससे हम अपना अटेंशन हमारे अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। ये जो सहज योगा की जो प्रोसेस है ये बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत साइंटिफिक है और इसको हमको समझना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सहज योगा इज spontaneous and natural. It is a technique of awakening the Kundalini Shakti which is lies in the sleeping state at the base of our spine that we call as a sacrum bone. If you see the diagram, you will find that there is a one diagram. At the bottom there is a triangular bone, which bone we call as a sacrum bone, and inside that there is a circular form of energy which we call as a Kundalini. Each human being has this energy but is in a sleeping state. But when we do some practical today, this energy get activated and it transfer to top of our head and connect, come out of head. That time we get the thoughtless awareness. That is we call as a nirvicharita or turiya state. And once this connection is established, this connection we call as a yoga. So the real meaning of yoga is not some kind of exercise, but the connection with your own energy, with the cosmic power, that we call as a yoga. Once you establish your yoga, you will automatically get the thoughtless awareness. And once you get the thoughtless awareness, all the benefit you will get. So Sahaj Yoga is not merely philosophy, but it's experience-based yoga. In Sahaj Yoga, there is no rituals, no do's, don'ts, but the practitioner of Sahaj Yoga automatically gives us all the bad habit and start experiencing a peaceful or a blissful life. It's a state of, I can say it's a state of freedom, liberation from pain, suffering, fears, duality, and tension of life. It's the freedom not simply to do, but the free from ego, attachment, and other things. Self-realization, this word is very important. Self-realization means awakening of Kundalini, and that we call as Atma Sakshatkar in Hindi, or in English we call as a self-realization. The self-realization is nothing but awakening of Kundalini. And when we do the practical, we can awaken our Kundalini with the very simple step. So what you will carry from today's session, you will not remember this part, but what you will remember, the experience of self-realization, experience of balancing, and that will help you throughout your life. So this experience will be with you throughout your life. If you follow the instruction, if you do all the practical part, you will feel that cool or hot breeze coming from your head and both of your palm once this energy get activated. So self-realization frees us from the domination of our mind and emotions. So once you get the self-realization, you can control your mind and emotion properly. And also it gives the benefit that you are free from loss, anxiety, all physical problem, mental problem. You will totally free, and you will enjoy a very joyous and loving personality, and you will be a very joyous and loving personality, and you can enjoy your life fully. Sahaj Yoga is helpful to improve the sleeping quality of people also, and because if the sleeping quality is improved, so automatically stress will reduce.
What is the stress? Stress is nothing but the imbalance in your desire and action power. If you desire something and it didn't convert it into the action power, that will generate the stress. So this is a gap between your desire and action power. So let's understand in more detail this human system, or we call as a subtle system. So if you see properly in your in front of your laptop or mobile, there is a one PPT. In that there is a person. In that person, if you observe every person by birth, he has some 2 hands, 2 legs, 2 eyes. Similar way, by birth he has some internal system. This is our, in addition to our physical body, there is a subtle system that is composed of nadis, we call as a channel, and chakras, we call as energy center, and the kundalini is born with us and can be awakened spontaneously without effort. So this is all the system we call as a subtle system. So this 7 chakra, which you can see on the left side, 1, 2, 3, 4, 5, 7, they have a different name like Muladhara, Swadhisthana. So these 7 chakras are responsible for our physical, emotional, and mental well-being. Once we get our self-realization, we feel this center in our subtle system within us. As the Kundalini rise and pass through this 6th center, which is our energy center in our spinal cord, and pierce through the frontal bone area on the top of our head, and once it's nourish this chakra, it gives a energy to this chakra so that a person feel relaxed, calm, and full of life. At this stage, a cool breeze, like a very beautiful vibration, start flowing through your fingertips, which is the experience of self-realization. Okay. So if you observe, there are 3 nadis also, which we call as a left sympathetic nervous system, the blue color line, which we call as a left sympathetic nervous system, or we call as a Ida nadi, or this is a nadi of our desire. Then the yellow color line we call as a right sympathetic nervous system, or in Sanskrit we call as a Pingla nadi, or this is a nadi of our action power. And the center path, which we call as a Sushumna nadi, or a parasympathetic nervous system. So what is this nadi all about? If you find a person who is a very lethargy, always focus on a past, over emotional person, depression person, that means his left side is a weak. But if you find a person who is an overactive person, very thinking about the future, workaholic, aggressive person, dominating person, that means his right side has some problem. But the person whose left side and right side is completely balanced, he's a peaceful person, positive thinking person, and that is what we are trying to achieve today with the practical part. We want to be a completely balanced personality. Okay. So let me show you one small video. Right side caters for our action, physical and mental. If you indulge into one too much and go too far, So in the small video, you have seen one small talk about Dr. Shri Nirmala Srivastava ji, or whole world known him as a Shri Mataji Nirmala Devi. She discovered the Sahaj Yoga technique in 1917, and after that,
She travel across the world, educate the people. Today millions and millions people are practicing the Sahaj Yoga. Sahaj Yoga technique is totally free of cost across the world. You can go anywhere in the world, you will find a free Sahaj Yoga center. There is no charge. As per Shri Mataji Nirmala Devi, we cannot charge the money for our own energy and a natural process. So Kundalini is our own energy and awakening is a natural process. So that's why Sahaj Yoga is totally free of charge across the world. Why Sahaj Yoga is unique? Because with Sahaj Yoga, you can be your own doctor. This is completely natural technique without any kind of disadvantage. It's a very scientific technique, very spontaneous technique. You don't require any physical effort. It's a living process. You can verify on your palm and top of your head. So if you all are ready, can we start the practical part? You all are ready, guys? Can we start? Sir, I have a query. Yes. Hello. Yes. Go ahead. Please go ahead. Sir, actually, I want to know, sir, what is reality, sir? सर मुझे पूछना है कि सर जो हम अपनी खुली आंखों से दुनिया देखते हैं वो रियल है, या फिर जो हम सपने में दुनिया देखते हैं वो रियल है, या फिर एक कंप्लीट स्टेट ऐसी आती है जब हमें कोई सपने नहीं आते? तो रियलिटी सर क्या है, जो हम देख रहे हैं ये रियल है कि नहीं सर? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है. तो लेट मी आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय, आपका नाम सर? मुकुल देव सिंह. मुकुल सर. अच्छा, मुकुल सर ने जो क्वेश्चन किया है, मैं लेट मी आंसर द क्वेश्चन. उन्होंने बोला है कि जो हम सपने देखते हैं या जो हम अभी रियलिटी में हैं, तो मुकुल सर, हमारे शरीर में ना 4 स्टेट रहती है. कोई भी ह्यूमन के बॉडी में 4 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस रहती है. पहली स्टेट होती है जिसमें मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ में बात कर रहे हो, ठीक है, आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आप पूरे अटेंशन में हो, राइट. इसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्टेट और वॉकिंग स्टेट, ठीक है. सेकंड स्टेट क्या होता है? जो ड्रीमिंग होता है. जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी पूरा रिलैक्स रहता है, लेकिन हमारा ब्रेन जो है ना वो वर्किंग होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर चलते रहता है, कुछ हमको सपने आते हैं. तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम सबकॉन्शियस या सुप्रा कॉन्शियस में जाते हैं, तो तब हमको वो सपने आते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उस समय वर्किंग रहता है. तीसरा स्टेट होता है डीप स्लीप. आपने डीप स्लीप एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जब सोते हैं तो एकदम पता ही नहीं चलता कि कितने देर सोए, लेकिन जब हम उठते हैं ना तो हमको बहुत फ्रेश लगता है, एनर्जी लगती है, एनर्जी अपने बॉडी में एनर्जी फील होती है, बहुत एक्टिव लगता है हमको. ये हो गया थर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. और फोर्थ स्टेट होता है जिसको हम थॉटलेस अवेयरनेस बोलते हैं, जिसको हम निर्विचारिता या तुरिया स्टेट. जस्ट अगर आप कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए ध्यान करो तो आपको डीप स्लीप से भी बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस है. अब आपका जो क्वेश्चन है वो मैं बहुत डिटेल में भी आंसर दे सकता हूँ, लेकिन अब बहुत सारी चीजें जो है वो अभी आपके लिए न्यू है, या बहुत सारी चीजें में बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन लगेगा. तो मैं आपको वो पूरा एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में या कुछ इसमें आपको मैं बता दूंगा. तो अभी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रैक्टिकल हम पहले समझ ले. तो होप ये आपको एक ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा अपने ड्रीम के बारे में, अपना नॉर्मल स्टेट के बारे में और थॉटलेस अवेयरनेस के बारे में, ठीक है. तो ऑल पार्टिसिपेंट, कैन वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट? ऑल आर रेडी? यस सर. Okay, thank you very much. So practical part में 3 स्टेप है जो हम 3 स्टेप्स करेंगे, और उसके बाद में वो स्टेप्स हमें पहले समझ लेना है कि क्या करना है, उसके बाद में हम आंखें बंद करके करेंगे. सबसे पहली स्टेप नंबर 1 क्या है? अपने दोनों हाथ जो है वो गोद में रखना है, ठीक है. अगर आप चेयर पे बैठे हो तो दोनों पैर थोड़े से अलग होना चाहिए. अगर धरती पे आप बैठे हो तो आप मांडी घाल के बैठिए, सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो. अपना स्पाइनल कॉर्ड अपराइट एंड स्ट्रेट रहना चाहिए, दोनों हाथ गोद में रहना चाहिए. ये होगी बेस पोजीशन. ये अपने दोनों हाथ ऐसे खुले गोद में रखना है. ये हो गई स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड हमारा गोद में रहेगा, राइट हैंड हम हृदय पे रखेंगे थोड़ा लेफ्ट साइड में, और थोड़ा जोर से दबाना है, ठीक है. ये हो गई स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3,
राइट हैंड अपना फोरहेड पे रखेंगे, जहां पे हमारा सर दुखता है, माथा दुखता है, टीका लगाते हैं वहां पे इस तरीके से आड़ा रखेंगे। तीसरी स्टेप हो गई, हमारा अपना राइट हैंड सर के ऊपर तालू भाग पे रखना है, थोड़ा जोर से दबाना है और घड़ी की दिशा में 7 बार फिराना है, और अपना जो हाथ तालू भाग पे जो अपन हाथ रख रहे हैं उसको पूरी तरह तानना है। ठीक है, बस ये 3 स्टेप करना है और उसके बाद में दोनों हाथ गोद में लेंगे। ठीक है, अब ये 3 स्टेप आपको बहुत अच्छी तरह प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन फॉलो करके करना है। अगर आप ये 3 स्टेप पूरे हृदय से करते हो तो आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग हो जाएगी, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं या आत्म साक्षात्कार। लेकिन इसके लिए आपकी खुद की डिजायर होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कीप योर बोथ द हैंड ऑन आवर लैप, स्लोली विल क्लोज आवर आईज। हम अपने दोनों हाथ गोद में रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रसन्न चित्त होके बैठना है, अपना अटेंशन अपने दोनों हाथों पे और सर के ऊपर तालू भाग पे। और यहाँ पे हम बंद आंखों से अपने विचारों को देखेंगे, लेकिन इसमें उलझना नहीं है, सिर्फ इसे देखना है। जैसे हम मूवी देखते हैं वैसे अपने विचारों को देखना है, लेकिन इसमें उलझेंगे नहीं। अब धीरे धीरे हमारा राइट हैंड हृदय पे रखेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, मदर आई एम द प्योर स्पिरिट। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मदर आई एम द प्योर स्पिरिट। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये 12 बार प्रार्थना हमें अपने हृदय में करना है। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। Now slowly raise our right hand. अपना सीधा हाथ उठाना है और माथे पे आड़ा रखना है, जहां पे हमारा सर दुखता है, टीका लगाते हैं वहां पे थोड़ा जोर से दबाना है। अपने सर को थोड़ा धरती की ओर झुकाएंगे और यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे कि मैंने सबको क्षमा की है। जिसने भी मुझे चोट पहुंचाई है, मैं उन सबको क्षमा करता हूँ, करती हूँ। किसी के भी बारे में सोचना नहीं है, सबको क्षमा करेंगे। मदर आई फॉरगिव एवरीवन। अपने हृदय से पूरी तरह उन्हें क्षमा कर दीजिए। अब धीरे धीरे वही हाथ हम सर के ऊपर तालू भाग पे रखेंगे, थोड़ा जोर से दबाएंगे और घड़ी के दिशा में 7 बार फिराना है। और यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, मदर प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना हम 7 बार दोहराएंगे और 7 बार अपना हाथ घड़ी के दिशा में फिराएंगे, ताकि हमारे हाथ के साथ में सर के ऊपर की स्किन भी रोटेट हो।
श्री माता जी, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। मदर, प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ हम गोद में रखेंगे। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ गोद में रखेंगे। अब हमारे शरीर में कोई भी हलचल नहीं, कोई भी हलचल नहीं, और अब हम ध्यान की स्थिति में जाएंगे। अपना अटेंशन, अपना चित्त दोनों हाथों की हथेली पे और सर के ऊपर तालू भाग पे रखना है। अब धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। स्लोली वी कैन ओपन अवर आईज। बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना है। लेट्स ओपन अवर आईज वेरी स्लोली। अपने दोनों हाथों की हथेलियां और सर के ऊपर तालू भाग पे देखना है कि हमें कुछ ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है या नहीं। अब एक आखिरी स्टेप है जो हम साथ में मिलके करेंगे। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो 2 मिनट के लिए अपनी वीडियो ऑन कीजिए। अपना जो सीधा हाथ है वो सर के ऊपर तालू भाग पे लेके जाना है, इस तरीके से। सीधा हाथ सर के ऊपर तालू भाग पे लेके जाना है, इस तरीके से, राइट हैंड। और थोड़ा सा ऊपर करना है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट। और देखिए आपको कुछ ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है या नहीं। मैं सभी से विनती करूंगा कि 2 मिनट के लिए अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हम सब साथ में मिलके करते हैं। सो थैंक यू राजकुमार सर, आई कैन सी यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, थोड़ा सा नीचे, राइट सर, राजकुमार सर परफेक्टली आप सही कर रहे हो। बाकी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर चालू कर सकते हैं तो कृपया चालू कीजिए थोड़े 2-3 मिनट के लिए। मूव अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। सी इफ यू कैन एबल टू डू इट। मूव लिटिल अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। अब अपना राइट हैंड गोद में रखना है, लेफ्ट हैंड से ट्राई करेंगे सेम। बहुत ही सूक्ष्म एनर्जी है, हमें महसूस करना है। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट लेके जाना है। उसे महसूस करना है कि हमें कुछ ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है या नहीं। सो रंजन मिश्रा सर, या ओके,
राजकुमार सर, यस आप परफेक्टली सही कर रहे हो। लेफ्ट हैंड फिर से गोद में राइट हैंड से ट्राई करना है एक बार फिर, लास्ट टाइम। अब दोनों हाथ हम आकाश की तरफ करेंगे, स्ट्रेट, सर पीछे के ओर झुका हुआ, और यहाँ पे हम अपने हृदय में प्रश्न पूछेंगे, श्री माता जी क्या यही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति है? अपने हृदय में ये प्रश्न पूछना है, हे परमात्मा क्या यही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति है? और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ हृदय के लेवल पे लाएंगे, यहाँ पे नमस्कार करेंगे, और धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलना है, पास लाना है, खोलना है, पास लाना है। आपको दोनों हाथों में कुछ ठंडा या गर्म महसूस हो रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ठंडा या कुछ गर्म आपको महसूस हो रहा होगा। यही इंडिकेट करता है कि आपके अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो गई। It will show that your kundalini will be get awakened. This indicate that you will feel a cool or hot breeze. So in the chat, I will request you, please post how many people feel a cool, how many people feel the hot. Can you please post on the chat? Okay, Rajkumar sir feel the hot. That is very good. What else? So other people, how did you feel? You feel a cool or you feel a hot? Okay, Chiranjeevi sir feel a cool. That is very good. Wow, that is very good experience. What else? So so only 2-3 parties pending. So maybe Dr. Ashok Kumar Mishra will share his experience. After that, Vishal Gupta from Infosys will share how to meditate at home in 5 minutes. And then Archana ma'am from IIT Mumbai will going to help you on question answer. So over to you, Professor Ashok Kumar Mishra. And meantime, I will be posting you one feedback form on a chat. If you fill this feedback form, you will get the today's PPT, some more information, and a lot of information about Sahaj Yoga. So once you fill the feedback form, you will get the automated email with all information. So over to you, Professor Ashok sir. Thank you, Chandrakant. A very good program and amazing happening going on around myself now. मेरा हाथ ठंडे हो गए हैं, सर के ऊपर ठंडा आ रहा था, and vibrations उंगली पर आ रहे थे. So ये हम प्रैक्टिस करने से सबको ये ऐसा फीलिंग आएगा और आपके में बदलाव आएगा. चेंज इन पर्सनैलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, आपका लाइफ सेफ रहेगा. यू विल कम टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. आपका जब लीवर हॉट हो जाता है, क्यों? गरम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा हार्डवर्क करते हैं. आपको बैलेंस में रहना है हमेशा. हाउ? जब आप ये ध्यान करेंगे तो आप जो भी आप हार्डवर्क करते हैं आप बैलेंस में आ जाएंगे. आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगा. आप जो भी बोलेंगे दूसरा समझेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा. दैट इज फुल कम्युनिकेशन. खाली बोलने से और ये अच्छा बात किया, आप उससे कम्युनिकेशन नहीं बोलते उसको. सो इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं. मैंने कुछ एक एग्जांपल दिया चैट बॉक्स में कि एक प्रोग्राम अटेंड करने के बाद एक लेडी ने हमको अपने सब प्रॉब्लम्स बताए, तो हमने उससे 1 घंटा डिस्कस करके बात किया, तो वो इतनी खुश हो गई. तो हम यहाँ पर इतना समय नहीं दे सकते आपको, अपना एग्जाम्पल नहीं बता सकते. प्लीज कॉन्टैक्ट मी आफ्टर द सेशन. कल कभी भी, आज कभी भी आफ्टर द सेशन इज ओवर आप कॉन्टैक्ट करिए. हम आपको आपके सारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है हम आपको गाइड कर देंगे और हमेशा गाइड करते रहेंगे till you are on your own, free of cost. इसमें कुछ पैसे नहीं लगते. You will get cooperation from people, from seniors. डेडलाइंस आपके जो है वो आप मीट कर सकते हैं. थॉटलेस हो जाएंगे आप, आपके विचार बंद हो जाएंगे. तो ये बहुत बड़ी चीज है जो कि जब आप अपने थॉट को रोक सकते हैं, यू कैन डू अचीव एनीथिंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग. वेयर इज योर अटेंशन? अटेंशन को पावरफुल करना है, सब काम होने वाला है आपका. आपका अटेंशन जाता है तभी सब काम होता है. जब आप ये ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे सजो का, slowly your attention will get more powerful, and then wherever you put your attention, your work will happen, right? You become innocent, and कोई रिलीजन और इसका एज फैक्टर नहीं है. सब लोग कर सकते हैं क्योंकि सब में ये शक्ति है.
और ये आसन जो योगा आसन और योगा में फर्क है, तो योगा आसन इज फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, ये करने से ये मेंटल एक्सरसाइज है जो कि आपके फिजिकल एस्पेक्ट को भी देखता है, आपको हेल्दी रखता है, आपको जो भी आप स्पोर्ट्स में मान लीजिए आपको कुछ एनोबिलिटीज है बॉडी में, आप आसन कर रहे हैं, तो उसको भी आसन को भी अच्छे तरीके से करने के लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम माइंड, आपके माइंड को शुद्ध करता है। सो whatever you are doing, you will be doing number one, चाहे आप आसन कर रहे हो, चाहे आप आपका कैरियर का काम कर रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, चाहे आपके फैमिली को देख रहे हो, anything whatever you are doing will be number one, and one day you can also become number one in the world in your work area. Thank you so much. Thank you, Professor Ashok Kumar Mishra, for sharing your valuable feedback. I will request you, Vishal Gupta, please explain how to meditate at home every day. Yeah, sure. Thank you, Jai Shri Mata. It's a nice program, self-relation program. Now we are discussing about how to do meditation in a home, in a home in a day, morning and evening. So हम घर पे we are doing a meditation in the morning and the evening. So जैसे आप सुबह उठे तो सुबह बैठना है और शाम को बैठना है। अब कैसे करना है घर पे, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है हमारे दो चैनल्स हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। अभी जैसे चंद्रकांत भैया ने बताया, हमारा लेफ्ट साइड अगर इम्बैलेंस होता है तो हमारा ध्यान नहीं लगता, और हमारा राइट साइड इम्बैलेंस होता है तो हमारा ध्यान नहीं लगता। तो हमने उन दो चीज़ों को पहले बैलेंस करने के लिए प्रे करना है, और उसके बाद हमने फिर ध्यान में जाके जो भी हमने निर्विचारिता, थॉटलेस अवेयरनेस फील करी है उसको फील करना है। तो ये 2 से 3 मिनट का प्रोसेस रहता है, सुबह भी और शाम को भी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे स्क्रीन में दिखाया है क्लियरिंग द लेफ्ट साइड, उसमें लेफ्ट हैंड को आपने गोद में रखना है, और जो राइट हैंड है उसको धरती माता पे रखना है। मतलब अपना अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आपने चेयर से राइट हैंड को नीचे रख दें, लेफ्ट हैंड को अपनी गोद में रखें, और आंखें बंद करके, अभी भी आप सकते हैं, आंखें बंद करके अपना लेफ्ट हैंड खुला हुआ, और यहाँ पे आप प्रेयर करें, श्री माता जी प्लीज मेरे लेफ्ट साइड को ठीक कर दीजिए। मतलब कहने का जो हमारी डिजायर है उसको बैलेंस कर दीजिए, मेरी जो डिजायर्स है उनको पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो उसमें ऐसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी जो लेफ्ट उसको बैलेंस कर दीजिए, और मेरे लेफ्ट हैंड में आप वाइब्रेशंस को महसूस करवाइए। अभी आपने ठंडा गर्म महसूस किया हाथ में, तो आप लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट साइड के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि प्लीज श्री माता जी मेरे लेफ्ट साइड को बैलेंस कर दीजिए। जब आप 2 सेकंड ये प्रार्थना करेंगे आपको लेफ्ट साइड में हल्का लगेगा। इसके बाद अपना राइट हैंड अपना गोद में लेना है, और लेफ्ट हैंड को ऐसे आकाश की ओर रखना है। जो आप सेकंड पिक्चर देख रहे हैं क्लियरिंग द राइट साइड, उसमें राइट हैंड गोद में है सीधा खुला हुआ, और आप चेयर बैठे हैं, आप देखिए सीधा खुला हुआ है। मैं थोड़ा हाथ को ऊपर रख रहा हूँ उससे आपको वीडियो में दिखे। लेफ्ट हैंड जैसे आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, उसका हाथ को उल्टा कर लीजिए ऐसे आकाश की ओर, इस तरह से रखना है, और यहाँ प्रेयर करनी है, श्री माता जी प्लीज मेरे राइट साइड को ठीक कर दीजिए। मतलब आपने डिजायर कम किया और काम ज्यादा कर दिया, तो आपके जो राइट साइड ज्यादा चली है उसको बैलेंस करना है। जब हमारी लेफ्ट और राइट बैलेंस होगी तो हम सेंटर में आके थॉटलेस अवेयरनेस में उस मेडिटेशन में जा सकेंगे। तो अभी हमने दूसरी क्रिया में राइट साइड को बैलेंस करने के लिए प्रेयर करनी है, श्री माता जी प्लीज मेरे राइट साइड को बैलेंस कर दीजिए। जैसे आप ये प्रेयर करेंगे तो आपको अपने राइट साइड पर हल्का महसूस होगा, रिलैक्स लगेगा। ये करने के बाद वापिस जैसे अभी आज हमने किया, दोनों हाथ आप हृदय के सामने रखें या गोद में खुले हुए रखें। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप तब गोद में रख लीजिए, अगर आप नीचे बैठते हैं आसन लगा के तब अपने हाथ अपनी गोद में रखें, आंखें बंद करके, और अपना जो चित्त है, अटेंशन है अपने तालू पे, जहां आपने सर पे पहले घुमाया था, अभी हाथ नहीं रखेंगे, केवल सर पे देखना है, तालू पे देखना है, आंखें बंद रखनी है, और यहाँ प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, श्री माता जी आपका धन्यवाद, आपने मेरे लेफ्ट और राइट साइड को संतुलित कर दिया, बैलेंस कर दिया, कृपा करके मुझे अभी ध्यान की अनुभूति दीजिए, मुझे मेडिटेशन स्टेज प्रदान कीजिए। तो आप देखेंगे आप जो अपना आपने चित्त तालू पे रखा है तो इसमें कोई आपको कोई सोच नहीं आएगी।
ये थॉटलेस अवेयरनेस का जो ध्यान है, जितनी देर आपको थॉटलेस अवेयरनेस रहती है उतनी देर आपने आंखें बंद करके ध्यान में बैठना है। So, thank you, Vishal sir, for giving us a very beautiful experience how to meditate at home. So now we are open for question answer. If you have any question answer, please feel free to ask. We will going to explain you. So this is a very scientific technique. The prayer doesn't matter. The only you should have a strong desire, and then you can do it. So आपकी strong इच्छा होना चाहिए, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। वी हैव विथ अस अर्चना मैम आल्सो, शी इज one of a lecturer in MIT college, so she can also help you to understand some of the questions. So आज हमारा ये इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो हम आपको सिर्फ एक आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस ही बता पाए, लेकिन इसके बाद में अगर हमको फ्यूचर अपॉर्चुनिटी विजय सर देते हैं तो हम डेफिनेटली फुट सोक टेक्निक, जो हमारे शरीर में से टॉक्सिक एलिमेंट निकाल देती है, म्यूजिक थेरेपी, जो अलग अलग चक्रास है उनके एसोसिएटेड अलग अलग राग होते हैं, जैसे मूलाधार का राग श्याम कल्याण, ठीक है, स्वादिष्टान का राग, तो वो एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रहता है, वो प्ले करने से वो पर्टिकुलर एनर्जी सेंटर एक्टिवेट होता है, तो वो म्यूजिक थेरेपी के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद में आइस पैक ट्रीटमेंट है, तो काफी कुछ है। आज तो इंट्रोडक्टरी हुआ है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए। तो मैंने देखा है काफी लोगों ने फीडबैक फॉर्म फिल किया है और उनको ऑलरेडी ईमेल भी रिसीव्ड हो चुका है उनके मेल बॉक्स में विथ ऑल इंफॉर्मेशन। जिसने नहीं किया है वो लोग जो है वो फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिए। और अब हम हर संडे को क्या करते हैं ना, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं जूम पे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वो जूम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे मेरा नंबर भी है व्हाट्सएप का, आप उस पे मेरे को कभी भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज पूछिए, कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट 2 या 3 मिनट हमको अगर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक या फिर चैट पे पूछ लीजिए। सर ये रिप्रेजेंट है, ये जो श्री माता जी हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं सर? अच्छा, तो अभी जब प्रेयर लिए है श्री माता जी या डॉक्टर श्री निर्मला श्रीवास्तव, ये फाउंडर थी सहज योगा की, ठीक है। तो इन्होंने जो टेक्निक डिस्कवर की है, इसके पहले भी ये टेक्निक एग्जिस्ट थी। अगर आप रामायण देखो, महाभारत देखो, या फिर संत ज्ञानेश्वरी पढ़ो, या और भी हर एक रिलीजन, हर एक धर्म में ये टेक्निक है, सिर्फ नाम अलग है। जैसा हिंदू में कुंडलिनी बोलते हैं तो मुस्लिम में रूह बोलते हैं, तो सिख में अलग बोलते हैं, और उनके अलग अलग नाम है। तो ये पहले टेक्निक क्या था, एक गुरु एक शिष्य को बताता था और वो मेडिटेट करता था। लेकिन 1970 में क्या हुआ, डॉक्टर श्री निर्मला श्रीवास्तव जी, इन्होंने अपना MBBS लाहौर यूनिवर्सिटी से किया। उन्होंने फिर क्या सोचा कि ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और साइंस को एक साथ क्लब किया और एक डिस्कवर की टेक्निक जिससे एनमास रियलाइजेशन पॉसिबल हो। तो उसके साथ में अब ये एक मास्टर टू एक डिसाइपल ना होके एक पर्सन टू काफी लोग कर सकते हैं, और ये पूरी तरह उन्होंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। तो उसके वजह से एज अ रिस्पेक्ट हम उनका नाम लेते हैं। बट इसके पहले भी मैंने बोला था कि प्रेयर डजंट मैटर, आपकी डिजायर होना चाहिए। इफ यू जस्ट डू दिस विथ लेट्स से मदर, अगर आप मदर बोलोगे तो वो आपके अंदर की जो शक्ति है कुंडलिनी, उसको भी हम मदर बोलते हैं, या ऑलमाइटी गॉड बोलो, या परमात्मा बोलो, या आप जिसको भी मानते हो वो बोलो। तो नेम इज डजंट मैटर, ओनली मैटर इज योर स्ट्रॉन्ग डिजायर। ओके, होप उद्भव सर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। एनी अदर क्वेश्चंस? सर ये जो मोक्ष है, मोक्ष, हाँ, ये मोक्ष है या फिर ये जो लाइफ साइकिल बोला जाता है सर, तो सर ये क्या सही है? और ये सर ये जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी सर, इसका क्या महत्व है, मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखो, जैसा मोक्ष, आपके 2 क्वेश्चन थे कि मोक्ष सही है या गलत है, या इसकी लाइफ साइकिल क्या है, और एस्ट्रोलॉजी सही है या गलत है, इसके बारे में आपने पूछा था। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर देना चाहता हूँ। मोक्ष
क्या है, ये हमें अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा एम क्या है कि हमको सबसे ज्यादा शांति कहाँ पे मिलती है, हम जॉयफुल या एंजॉयफुल लाइफ कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये हम योगा और मेडिटेशन से एंजॉय कर सकते हैं तो यही हमारे लिए मोक्ष है। ठीक है, अगर आप हर समय प्रसन्न रहते हैं तो यही हमारे लिए मोक्ष है। ठीक है, उसके बाद की जो मोक्ष की डेफिनेशन है वो शायद हमें ज्यादा टेक्निकल डिटेल में न जाते, हम किस तरीके से आनंद से रह सकते हैं इस समय, वो है मेडिटेशन, वो है योगा। तो मैं चाहूंगा कि हम अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पे हम कंसंट्रेट करें कि अभी हम हमारे हेल्थ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम जॉयफुल लाइफ कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये चीजें हम अचीव कर लिए तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी चीज है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी मे बी राइट मे बी रॉन्ग, हमें इस पे कमेंट नहीं करना है, लेकिन अगर सपोज तुम्हारी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, अगर तुम्हारी डिजायर बहुत अच्छी है और एक्शन पावर बहुत अच्छी है, जैसे तुम्हारी लेफ्ट साइड मैंने जो बोला है तुम्हारी डिजायर पावर रहती है और राइट साइड जो है तुम्हारी एक्शन पावर रहती है, अगर ये दोनों भी पावर एकदम परफेक्ट है, तुम्हारी बैलेंस है, तो आप हर जो चीज आप चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी डिजायर स्ट्रांग है और आपकी वही क्रिया शक्ति भी स्ट्रांग है। तो एस्ट्रोलॉजी में हमें ना पढ़ के हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको हम एनहांस करें तो लाइफ के हर एक प्रॉब्लम, हर एक चीज हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और कोई प्रश्न है? Any other question? Okay, Mukul Dev sir is asking, according to the Markandeya Upannyas, what is the state of Turiya? Whether Turiya control our body? Okay, so Turiya. Sir, it is Manduk Upanishad. Oh, Manduk. Okay. Yes, sir. I have written Manduk Upanishad. Okay. Sorry, I pronounced wrong because it's very small. Okay, so Turiya, मैं पहले से बता रहा था, as I'm with the starting, I'm saying that Turiya is a fourth dimension state. Actually, this is nothing but the state, and that is in very simple form, if we want to understand, is a thoughtless awareness. In हिंदी में निर्विचारिता बोलते हैं। तो जितने भी लोग अगर आप देखेंगे कि ये ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये तुरिया स्टेट में जाते हैं, अपने निर्विचारिता स्थिति में जाते हैं। जब आप निर्विचारिता स्थिति में जाते हो, ठीक है, तो आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। अभी क्या होता है कि आप कोई भी एक डिसीजन, अगर आप कुछ सोचते हो तो आप, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप डिसीजन इमोशनली लेते हो। ठीक है, अगर सपोज आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो आप अपने ब्रेन से डिसीजन लेते हो, इंटेलेक्चुअल यूज करते हो। ठीक है, तो ये डिसीजन आपके अलग अलग मैटर करते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द मैटर। ठीक है, लेकिन जब आप ध्यान करते हो, तुरिया स्टेट में जाते हो, तो आपका आपके बॉडी पे, आपके ब्रेन पे, आपके इमोशन पे पूरी तरह कंट्रोल रहता है। उससे क्या होता है कि आप सही डिसीजन सही समय ले सकते हो। अगर आप कोई भी सक्सेसफुल लीडर देखो, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, या और कोई भी रिसेंट में अन्ना हजारे, ये सब लोग रोज मेडिटेशन करते हैं सुबह उठ के या नाइट में, जब भी उनका शेड्यूल होगा उस अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, जिससे वो डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप इज व्हाट? टेकिंग अ डिसीजन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। ठीक है, सही डिसीजन सही समय पे लेना, दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो ये सारी चीजें तभी आपको आती है जब आप अंदर से शांत हो, अंदर से बैलेंस हो, और शांत, बैलेंस और अपने आप पे कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब आप तुरिया स्टेट में हो। सो तुरिया स्टेट अचीव करने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। ठीक है, सो मुकुल सर, आपका भी बहुत अच्छा प्रश्न था, थैंक यू वेरी मच। Any other question? Any other question? Archana ma'am, you want to add something? Archana ma'am, you want to add something? Okay. So और कोई प्रश्न है? अगर और कोई, यस सर
सर ये जो दूसरा जन्म होता है तो नेक्स्ट बर्थ, वो yes, सर क्या ये हम मानते हैं, मतलब क्या हिंदू उसमें तो माना ही जाता है, मतलब बट मतलब क्या ये सच है? ये जो अभी जैसा आपने बोला सेकंड बर्थ सही है या नहीं है, या मोक्ष है या स्वर्ग है, ये सारी चीजें हाइपोथेसिस है, ठीक है। ये में भी सही हो सकती है या ये में भी रॉन्ग हो सकती है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें ये जो हाइपोथेसिस की चीजें हैं इसको अभी हमें टच नहीं करना है। जब हम अपने अंदर की शांति को टच करेंगे, अंदर के पीस को टच करेंगे, तो ये बाकी की जितने भी हाइपोथेसिस क्वेश्चन है ये ऑटोमेटिकली हमें अपने एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो हमें अभी अपना क्या करना है, हम अगेन जब हम बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोचते हैं तो हमारी राइट साइड पे प्रॉब्लम होता है और हम बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा पास्ट भूतकाल के बारे में सोचते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड वीक होती है, जिसे हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा भूतकाल के बारे में भी नहीं सोचना है या बहुत ज्यादा भविष्यकाल के बारे में भी नहीं सोचना है कि ये ऐसा है वो। अभी हमको प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट चीजें एंजॉय करना है जिससे हमको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। यू वांट टू ऐड समथिंग प्रोफेसर? हाँ, मैं एक ही ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोगों को प्रेजेंट में रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि फ्यूचर इज अननोन और पास्ट इज डेड। तो हमको प्रेजेंट में रहना चाहिए। मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और 2000 रुपये का खाने का ऑर्डर देते हैं एंड आप घर की बात करके अपना समय बिताते हैं वहाँ पर, तो आपको खाना का टेस्ट नहीं मालूम पड़ेगा और आपको एम्बियंस भी नहीं मालूम पड़ेगा कि कैसा था, और म्यूजिक भी नहीं सुन पाएंगे आप। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रेजेंट में रहो, नंबर 1। नंबर 2, पहले आप क्लास 2 पास करते हो, 6 पास करते हो, 10 जाते हो, फिर उसके बाद और आप आगे बढ़ते हो ना। तो स्टेप बाय स्टेप है। तो हमको भी पहला स्टेप जो है कि अपने को जानना है, अपने में चक्रों की सफाई करना है। ये आप पहले साफ करेंगे तब आपका जो नेक्स्ट स्टेज है ना, जो मोक्ष का है या वो, उसको फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ उसको प्राप्त करने के लिए क्या है और क्या इसी तरीके से आप प्राप्त कर जाएंगे। मेरे हिसाब से तो आप इतना ध्यान धारणा करेंगे, आपको सब चीज मिल जाएगा यहीं पर। यू विल बी टोटली सेटिस्फाइड पर्सन। तो वही मोक्ष है और वही नया जन्म भी है। तो आपकी आत्मा है, आत्मा आपके शरीर को छोड़ देती है क्योंकि आपका शरीर ओल्ड हो जाता है, कुछ काम लायक नहीं रहता है, तो फिर वो दूसरे शरीर में चली जाती है। तो ये सब चीजें हैं, बल्कि हम बोल रहे हैं, आप मत मानिए उसको। आप खुद जब ध्यान करेंगे तो आपके अंदर में ज्ञान सब तरह का आएगा, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। ये बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। कोई भी नॉलेज, कोई भी, ये सब आपको एक्सपीरियंस से सब मालूम पड़ जाएगा। सो अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए अपना पूरा थॉट जो प्रोसेस है ना, फ्यूचर में मत जाइए। मोक्ष क्या है, ये क्या है, इस पर मत डालिए। ये जो आज सिखाया गया है उस पर टोटल कंसंट्रेट करके आप ध्यान करिए, आपको बाद में सब चीज मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. And we are very thankful to Vijay sir, Arun sir for giving this opportunity here to interact with such a beautiful audience, and they are such interactive. We are very happy with the Udbhav sir question, Arun sir question, and many other people, Mukul sir. They are very interactive people. They are asking questions. So thanks for all your question. Because of your question, it make the interactive session. We are very happy and we are thankful for giving this opportunity, and hope you will practice this in future also. So there is a question from Rajkumar Patel sir. Any book or magazine to know about Sahaj Yoga and its origin? Yes sir, if you fill the feedback form, you will get that book and we can share you. Or maybe if you can just ping me on my WhatsApp number, we can send you the book. That will be very helpful to you. I posted my number. So we can give it to you, sir. Thank you very much, sir. Over to you, Vijay sir. Thank you, sir. Thank you, Chandrakant sir, Professor Ashok Kumar sir, Vishal sir, and Archana ma'am. So I think nowadays, in this modern days, yoga is very much important for each and everyone. So you have given a clear-cut idea on this. It is very helpful to the participants, sir. Thank you, sir, once again. Yeah, thank you. Sir, we want more sessions. Yes, sir, sure, sir. In
Next April, we would like to conduct another FDP, sir. So definitely we will arrange this yoga session also, sir, in that FDP. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you once again. So thanks. All our team can log off from system. Thank you very much. Thank you. Thank you all. So dear participants, next session will start at 2:30.